Good morning, students. So we are doing chapter population distribution, density, and growth. So we have discussed about the population distribution and population density. These two topics we have already discussed. What do we mean by population? First, we have discussed about this. Then we have discussed about the population distribution, and second, we have discussed about the population density. Population distribution, we have discussed the people those who are living in a particular area. That is called population distribution. And density means how many people are living in a per square kilometer. That is called population density. And it is uneven in the complete world according to the some factors. So those factors today we will discuss. What are the factors responsible for the distribution of population? It means some areas are so much densely populated and some areas are very less populated. So what are the reason behind this, that we will discuss. So what are the reason that is given? Factor influencing the distribution of population. This question is asked sometimes. What are the factors responsible for the distribution of population in the world? So there are some factors which are responsible for the uneven distribution of population in complete world. So first we will discuss about the geographical factor. Geographical factor means those are the related to the landform, mountain, plain, plateau, and these areas. So geographical factors, first is given availability of water. You know very well water is the most important thing for human being. So in the beginning also, when in ancient time also, human beings started living near the rivers. Ancient civilization, we have discussed about the Indus Valley civilization, we have discussed the Nile Valley civilization. So these all were established near the water, because water is important thing for human being. All activities of the human being depend on water. So water is the most important thing. The area which has good availability of water, that area is densely populated area. यानी जिस एरिया के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है या प्रॉपर है, उस एरिया के अंदर आपको पता है पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है उस एरिया के अंदर पॉपुलेशन वो आपकी कम है. नेक्स्ट इज गिवन लैंड फॉर्म्स. Landforms means the area, those are like mountain, plain, plateau. So those are the plain areas, they are densely populated, and those area are plateau and mountain, they are less densely populated area. यानी वहाँ पे population आपको कम मिलेगी. कारण क्या है उसका? Reasons are there. Agricultural land, a plain area is suitable for all types of activities. Industries we can set up, road, rail network we can establish in plain areas. But there are some problems in the areas of mountain and plateau areas. So then in those areas population is less in comparison of a plain area. So that is also a responsible factor. Then next is come climate. Climate is also a very important factor. If there is a harsh climate, it means there is a extreme climate in particular areas. जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, बारिश ज़्यादा होती है, these areas are not suitable for human beings survival. It means the area which are suitable for the human beings survival. Suitable means क्लाइमेट. क्लाइमेट का मतलब यहाँ पे क्या है? जलवायु इसको बोलते हैं, कि कैसे क्लाइमेट के अंदर ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकता है. दैट शुड नॉट बी हॉट, नॉट सो मच कोल्ड. ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जो ज़्यादा कोल्ड हो, ज़्यादा हॉट हो. ह्यूमन बीइंग उस एरिया में ज़्यादा सर्वाइव करता है जिस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा इक्वल रहता है, ज़्यादा उसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता. नेक्स्ट इज गिवन सॉइल. सॉइल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर. यू नो वेरी वेल, विदाउट the fertile soil, human being what will do in that area? Fertility of the soil is dependent, because those areas are fertile, in that area population is more in. We can compare with our country also, and those countries are एग्रीकल्चरल कंट्री. जहाँ पे एग्रीकल्चर, जहाँ पे जिस एरिया में ज़्यादा होता है उसी एरिया के अंदर पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी. तो एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपका? सॉइल. द सॉइल शुड बी फर्टाइल. अगर सॉइल फर्टाइल है तो उस एरिया में एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, और एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो पीपल विल ऑल्सो फाइंड, और पीपल विल ऑल्सो लिव मोर इन दैट एरियाज. वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे. दो दी ज़्यादा सम जोग्राफिकल फैक्टर्स. ये कुछ जोग्राफिकल फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. तो जोग्राफिकल फैक्टर में पहला था अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. सेकंड वी हैव डिस्कस लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स इन माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, आइलैंड, दीज ऑल आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स. Next we have discussed about the climate, and last we have discussed about the soil. So these are the some important factors which are important for the human beings population distribution, and these are called geographical factors. Next will come economic factors. Economy means the how people will earn the money. दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर. इकोनॉमी उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ह्यूमन बींग की जो प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे होगी, हाउ ही विल डू, एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज थ्रू दैट ही विल डू दीज एक्टिविटीज़. सो फर्स्ट इज गिवन मिनरल्स. Minerals are the most important thing. These are required for human being survival. So those areas are good in minerals. जहाँ पे minerals आपको अच्छे अमाउंट में मिलेंगे, that area is, in that area also people will live more. जहाँ पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है उस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. नेक्स्ट इज गिवन अर्बेनाइजेशन. अर्बेनाइजेशन मीन्स शहरीकरण. जहाँ पे जनता शहर ज़्यादा होंगे, टाउन्स या सिटी ज़्यादा होंगे,
तो उस एरिया में आपको पता है फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स दे कैन डू मोर एंड मोर एक्टिविटीज़, उनको काम करने के लिए वहाँ पे क्या है, आपको इंडस्ट्रीज़ है, अदर रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल सो दैट दे कैन अर्न द मनी, यानी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, इसलिए क्या है वहाँ पे लोग ज़्यादा मिलेंगे अर्बनाइजेशंस के अंदर। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, यू नो वेरी वेल वेयर द इंडस्ट्री विल बी सेटअप, जहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पे क्या होगा, लोग अपने आप वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि उनको उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, दे विल गेट द एम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो those areas are industrialized, there are lot of industries, so these areas are also population is more in that area। जैसे हम एग्जांपल अगर लें तो हमारे एनसीआर एरिया जितना भी है, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, तो उस एरिया के अंदर आप देखोगे पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसका कारण क्या है, इंडस्ट्रीज़, एंड दैट एरिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बनाइजेशन। शहरीकरण होने का उस एरिया का ज़्यादा भी कारण क्या है आपका, ये है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, दे आर गेटिंग ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी फ्रॉम दिस एरिया। सो दीज आर द इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है जिससे ह्यूमन बींग्स कैन अर्न द थिंग्स, जिसमें ह्यूमन बींग की अर्निंग होती है, जिससे वह ह्यूमन बींग अर्न करता है अपने लाइवलीहुड के लिए। नेक्स्ट इज गिवन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सोसाइटी एंड कल्चर दैट इज ऑल्सो प्लेइंग ए मेजर रोल। द पीपल दोज हु हैव द सेम कल्चर दे विल बी फाइंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जिसका कल्चर उनके साथ में नहीं मिलता है, सोसाइटी के साथ में उनका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, तो उस एरिया में वो लोग नहीं रहेंगे, दूसरे कल्चर के लोग वहाँ पे रहना सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट इज रिलीजियस प्लेसेस। रिलीजियस प्लेसेस यू नो वेरी वेल, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, तो वो क्या करता है कि रिलीजन, धर्म को भी मानता है, और धर्म को मानता है तो वो अपने एरिया जहाँ पे उसके रिलीजन के लोग रहते हैं उस एरिया में रहना पसंद करते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। कल्चरल सिग्निफिकेंस, एवरी सोसाइटी हैज़ ए डिफरेंट कल्चर। हर एक सोसाइटी का अपना अलग अलग कल्चर। कल्चर होता क्या है, रहन सहन, खान पान, कपड़े कैसे पहनते हैं, दीज आर कॉल्ड कल्चरल सिग्निफिकेंस। यानी हर एक सोसाइटी का अपना कल्चर है, उस कल्चर के अकॉर्डिंग लोग रहते हैं, तो उसी एरिया में उसी कल्चर के लोग मोस्टली आपको मिलेंगे जो जिस कल्चर को मानते हैं। नेक्स्ट इज सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द कंट्री दोज आर सोशली इंस्टेबल, पॉलिटिकली इंस्टेबल, जहाँ पे क्या होता है आपका गवर्नमेंट बनती रहती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कभी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कभी वहाँ पे रियोट्स, दंगे होते रहते हैं, सिविल वॉर सिचुएशन क्रिएट होती है उस कंट्री के अंदर। सो ऑन दोज कंट्रीज पीपल डू नॉट वांट टू लिव। सीरिया का एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, सीरिया में आपको पता है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है उस एरिया के अंदर, तो उसके कारण वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो जहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल होती है इन दोज कंट्रीज पॉपुलेशन इज मोर। फॉर एग्जांपल इंडिया ऑल्सो, यू कैन सी सम अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, दे आर ऑल्सो पॉलिटिकली स्टेबलाइज्ड, सो इन दोज कंट्रीज पॉपुलेशन इज मोर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट इंसेंटिव मीन्स गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। जनता की वेलफेयर के लिए जहाँ पे ज़्यादा काम होंगे उस एरिया में जो पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। दोज एरियाज आर डिक्टेटर्स, जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी, जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा, पीपल डू नॉट वांट टू लिव इन दोज एरियाज। लोग उस एरिया में रहना पसंद नहीं करते हैं। लोग उस एरिया में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे आपको क्या है, ये चीज़ें अवेलेबल होगी। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको रिवाइज करने हैं, अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। पहला जोग्राफिकल है, दूसरा इकोनॉमिक है, तीसरा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। ग्रोथ जो हो सकती है वो पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। इट डजेंट मीन दैट ओनली पॉजिटिव वे। पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आपकी माइनस में भी जा सकती है और वो प्लस में भी आ सकती है, तो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। होता क्या है, इट रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो पॉपुलेशन के अंदर बदलाव आता है, चेंज आता है, चाहे वो बढ़ी हो चाहे वो कम हुई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पॉपुलेशन में जो बदलाव हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। फॉर एग्जांपल इन आवर कंट्री आफ्टर एवरी 10 ईयर वी आर डूइंग सेंसस। हर एक 10 साल के बाद में हमारे देश में सेंसस होता है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में हम देखते हैं कि कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, कितनी हमारी कम हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। दिस चेंज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पॉपुलेशन चेंज है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। इट मे बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन एब्सोल्यूट नंबर और इन परसेंटेज। पॉपुलेशन जो आपका ग्रोथ है उसको हम दो वे में प्रेजेंट करते हैं, एक तो होता है आपका परसेंटेज में और एक होता है आपका एब्सोल्यूट नंबर में।
परसेंटेज में तो कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई, 2%, 5%, 3%, एंड एब्सोल्यूट नंबर में कितनी हुई, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ये एब्सोल्यूट नंबर होता है। एब्सोल्यूट नंबर का मतलब होता है कि एग्जैक्ट में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, और परसेंटेज में क्या होता है आपका, परसेंटेज निकालना उसका 2, 3, 4, 5, 6% इन दिस वे। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन 2 वे। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम 2 वे में एक्सप्रेस करते हैं, कौन सा, वन इज एब्सोल्यूट वे एंड सेकंड इज परसेंटेज। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि एग्जैक्ट कितनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और परसेंटेज में उसका हम परसेंटेज निकालेंगे, कितनी परसेंटेज बढ़ी है, 2%, 3%, 4%, 5%। सो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। Population change of an area is a major indicator of economic development, social upliftment and historical and cultural background of the region. पॉपुलेशन चेंज का मतलब है कि किसी एरिया के अंदर पॉपुलेशन में बदलाव आता है, अगर वो बढ़ती है या घटती है तो उसके कारण क्या होता है, आपका उस एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा, आपका कम होगा। सोशल अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी का अगर डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी का भी क्या होगा, आपका अपलिफ्टमेंट होगा, सोसाइटी भी डेवलप करेगी। एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन, दूसरा क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ उस एरिया की किस पे डिपेंड करती है, उस एरिया का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है और उस एरिया का कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, इन चीज़ों पे भी क्या करता है, पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। तो दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस टुडे। फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन में बदलाव आता है, परसेंटेज में वो बदलाव आए, चाहे वो एब्सोल्यूट नंबर में आए, यानी पॉपुलेशन चाहे 1-2 लाख में बढ़े, चाहे उसके हम परसेंटेज निकालें, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी पॉपुलेशन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम 2 वे में एक्सप्रेस करते हैं, एक परसेंटेज में और एक एब्सोल्यूट नंबर में। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जब पॉपुलेशन की हम परसेंटेज निकालेंगे कि 2 लाख बढ़ी है तो कितनी परसेंटेज में बढ़ी है, और एब्सोल्यूट नंबर क्या हो गया आपका 2 लाख, यानी 2 लाख पॉपुलेशन बढ़ी है तो वो एब्सोल्यूट नंबर हो गया, और परसेंटेज में उसकी निकालेंगे तो वो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो 2 तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हम निकालते हैं, वन इज परसेंटेज, सेकेंड इज absolute number. So today we have discussed about these things, so you will revise this and write down in your notebook about these all things. Thank you, have a nice day.